So as you can see here, for cos 3 theta we were using cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b. You put a as 2 theta, b as theta. So cos 2 theta plus theta, formula applies, cos 2 theta cos theta minus sin 2 theta sin theta. Here value of cos 2 theta is put, and here the value of sin 2 theta is put, multiplied by sin theta. So this gives you 2 sin square theta. Now if I multiply inside, we have 2 cos cube theta minus cos theta minus 2 into 1 minus cos square theta into cos theta. So 2 cos cube theta minus cos theta minus, we have 2 cos theta. I can rewrite it as 2 cos theta into 1 minus cos square theta. When we open it, Naina has correctly stated the answer. We have minus 2 cos theta plus 2 cos cube theta. So overall answer becomes 4 cos cube theta minus 3 cos theta. This is the formula for cos 3 theta. Please take a screenshot or photo. Derivation is not that important from the exam point of view, but the formula is very important. Alright, now we will solve for tan 3 theta. For tan 3 theta, obviously we will be taking help of tan a plus b. This is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. So we put a as 2 theta and b as theta. We have tan 2 theta plus theta equals tan 2 theta plus tan theta divided by 1 minus tan 2 theta and tan theta. In the left hand side we have tan 3 theta, and in the right hand side we will have to put the value of tan 2 theta. So this value needs to be put. So putting the value as tan 2 theta is 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. This value is put in numerator as well as in denominator, plus tan theta whole divided by 1 minus 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta into tan theta. So this simplifies as, by taking LCM on the numerator side, we have 1 minus tan square theta, here 2 tan theta, plus tan theta multiplied by 1 minus tan square theta. As you can see that we have 1 here in denominator. So LCM is 1 minus tan square theta. So this 1 minus tan square theta goes in multiplication with tan theta. Whole divided by, if I take LCM here we have 1. So this 1 minus tan square theta comes in numerator, minus 2 tan theta into tan theta is 2 tan square theta. Very clearly, the denominator
of both of numerator and denominator is same, so it gets cancelled. You just have to open the above expression. We have 2 tan theta plus tan theta minus tan cube theta whole divided by 1 minus 3 times tan square theta. So here comes the identity. Identity is tan 3 theta is 2 tan theta plus tan theta 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. Very important. Please note down the identity and or take a screenshot and a photo. What is the value of sin 6 theta? तो कितना आएगा लवप्रीत? सर 2 साइन और कॉज का फॉर्मेट तो सेम रहेगा, बस 6 थीटा की जगह अब हम क्या डालेंगे 3 थीटा। एंगल को क्या करना है हमने हाफ करना है बेटा। एंगल कितना भी आ जाए you just have to half this angle, right? अगर आप डेरिवेशन करके देखोगे तब भी इतना ही आएगा, but you need not do the derivation since you have done the derivation already. You just know that angle becomes half. Angle becomes half. ये आपको पता होना चाहिए, राइट? चलिए अगर मैं पूछता हूँ साइन 10 थीटा है तो वो कितना बनेगा? आगमजीत, सो इट विल बी 2 साइन 5 थीटा कॉज 5 थीटा। तो ये तो मैंने सारे इवन पूछे। अगर मैं कल को साइन 3 थीटा में साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ तो भी लग सकता है सर। साइन 3 थीटा में भी लग जाएगा? हाँ जी लग जाएगा सर। करना क्या है, फंडा यही है, एंगल को हाफ करना होता है। हमको कैसे पता लगेगा कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला चलाना है या साइन 2 थीटा का? क्वेश्चन देखकर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा। अगर वहाँ 3 थीटा बाई 2 मैंशनड है तो आप साइन 3 थीटा क्यों खोलोगे? आप साइन 2 थीटा के हिसाब से ही लगाओगे ना। एंगल ने तो हाफ ही होना है, तो 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2। राइट? सपोज मैंने आपसे पूछ लिया साइन 5 थीटा, अब बताओ क्या आंसर होगा नैना जी? तो साइन 5 थीटा बाय 2 cos 5 थीटा बाय 2। एब्सोल्युटली करेक्ट। चाहे तुम इसको 2.5 थीटा लिख लो, चाहे 5 थीटा बाई 2 लिख लो, बात एक ही है। cos 5 थीटा बाई 2। क्या सर टैन वाले में भी थीटा की वैल्यू तो होती है हमारे पास? होती है, लेकिन क्वेश्चन में मान लो आपको टू प्रूव में साइन 3 थीटा बाई 2 मेंशन था, फिर क्यों आप साइन 3 थीटा की वैल्यू डालोगे? फिर तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आगे के जो कंसेप्ट हैं वो क्वेश्चन को देखकर ही आप लगा सकते हो, ऐसे नहीं लगा सकते। ठीक है? अगर मैं आपसे सिंपल इतनी बात पूछ लूँ साइन थीटा क्या आंसर देगा,
साइन थीटा का आंसर कितना आएगा फिर? सर 2 थीटा था तो थीटा थीटा आया, 4 थीटा था तो 2 थीटा आया, 6 थीटा था तो भी हाफ हाफ आया, 5 थीटा था तो उसका भी हाफ कर दिया। तो 1 थीटा का क्या होगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है नहीं? तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या साइन का जो हाफ एंगल का फॉर्मूला है वो tan में भी चलेगा? कि अगर मैंने पूछ लिया साइन 4 थीटा बताओ tan में, तो tan में कैसे लिखूंगा सर इसको? तो tan में आएगा सर 2 tan, पहले थीटा होता था और अब क्या आएगा? 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, एंगल हाफ ही करना है बस। फॉर्मेट कोई भी उठा सकते हो। अब क्वेश्चन में अगर tan मेंशन्ड होगा तो आप साइन 4 थीटा की ये वैल्यू डालोगे। अगर क्वेश्चन में साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा ही टू प्रूव में कुछ लिखा होगा तो आप साइन 4 थीटा की ये वैल्यू डालोगे। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से वैल्यू नहीं डलेगी या जो आपने फॉर्मूला याद कर लिया मैं तो वही लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू डलेगी। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू मैं tan की टर्म्स में डालूं तो क्या आएगा? अब सर यहाँ 4 थीटा था तो यहाँ 2 थीटा आया ना, तो नैना जी साइन थीटा का tan में आंसर क्या आएगा? सर 2 tan थीटा बाय 2। वेरी गुड, 2 tan थीटा बाई 2। इसलिए 2 तो फिर करके रहेगा। बेटा जो एक बार एंगल में चला गया उसको जेल होगी, वो इस 2 से 2 नहीं काट सकते आप। क्यों नहीं काट सकते? देखिए क्या 2 साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री होता है? नहीं, हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं ना कर सकते साइन के एंगल के साथ। इन द सेम वे वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस 2 विद दिस थीटा बाई 2, so that's why we cannot cancel this 2 by 2. So we have 2 tan theta by 2 over, sorry 1 माइनस 1 माइनस नहीं आता बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ 1 प्लस आता है। 1 प्लस, पिछला भी हमने गलत लिखा था, 1 माइनस नहीं है 1 प्लस है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हाँ। बाय 2। ये 1 प्लस कंपनी इतनी अच्छी है, देख लो ये साइन में आती है। हाँ जी बोलो, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। सर हाँ जी सर सर tan 3 थीटा वाले क्वेश्चन में 1 प्लस आएगा? नहीं, साइन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो चेक करो, tan की टर्म्स में मैंने प्लस लिखवाया होगा नीचे। आप tan यस सर। आप tan 3 थीटा का देखोगे तो दोनों ऊपर माइनस नीचे भी माइनस, दोनों माइनस होंगे। tan 2 थीटा में देखोगे नीचे माइनस आएगा। ठीक है, ओके सर। तो बेटा हाँ जी। ये देखो मैंने आपको कितने एग्जांपल दिए, 2 2 4 तो 6 2 8, राइट। और भी बन सकते हैं एग्जांपल्स। आपने बेसिकली साइन 2 थीटा के साथ 10 एग्जांपल्स बनानी है, ठीक है ना। आप बना लो जी साइन 10 थीटा, या फिर इन्हीं के पाँच एंगल्स ये ले लिए आपने, ठीक है। एक थीटा वाला एंगल ज़रूर रखो, थीटा बाई 2 वाला, राइट, 1 थीटा वाला। चाहे आप 10 थीटा मत लो, 1 थीटा ले लीजिए। 5 ये हो गए tan साइन के साथ, साइन कॉस के साथ, इन्हीं के tan के साथ भी बना लेने हैं, ठीक है। फिर cos 2 थीटा की बारी आई, cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का कितना आंसर होता है बेटा? सर इसके तो 4 आंसर होते हैं, आपको कौन सा चाहिए? मेरे को cos और साइन दोनों में चाहिए,
तो ये होगा सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें फंडा क्या होता है? फंडा तो सर एंगल हाफ हो जाता है ना। एंगल हाफ हो जाता है मतलब कि अगर मैं कॉस 4 थीटा पूछ रहा हूँ तो आंसर कितना आएगा आगमजीत? सर अगर सर आप, टू। हाँ वेरी गुड, तो ये आएगा, फॉर्मेट यही रहेगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है नी? चलिए नैना जी, कॉस थीटा क्या होगा? सर cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. वेरी गुड। जो बच्चा ये समझ गया एंगल हाफ करना, राइट, उनको ये कंसेप्ट आ जाएगा बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 10th क्लास से 11th क्लास में डिफ़िकल्टी क्यों आती है कि मेरे दिमाग में कॉस थीटा का ये फॉर्मूला कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 10th से ही तो जस्ट पास आउट हुआ हूँ, कभी किसी ने मेंशन ही नहीं किया। तो ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना ज़्यादा होती है जिसके आपके दिमाग में आने की संभावना कम हो। ठीक है ना। सो लवप्रीत जी, आपको पता है cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे आंसर इसकी टर्म्स में चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की टर्म्स में, है ना। तो cos 3 थीटा का आंसर कितना होगा? फॉर्मेट यही चाहिए। लवप्रीत जी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आंसर आएगा 2 cos स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 माइनस 1। बेसिकली आपको कोई मतलब नहीं है, आपने लिखना सिर्फ यही है, एंगल को हाफ करना है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं cos 6 थीटा, cos 6 थीटा में इस फॉर्मेट में क्या आंसर आएगा? टू कॉस स्क्वायर हाँ 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर कितना? सर 3 माइनस 1। 3 थीटा माइनस 1 बेटा, 2 cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1 आएगा बेटा। ठीक है नी। चलिए अगला फॉर्मेट होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे आंसर इस फॉर्मेट में चाहिए। अगर मैं कहता हूँ cos 8 थीटा है तो इसको कैसे चेंज करोगे इस फॉर्मेट के हिसाब से? So 1 minus 2 sin square 4 theta. वेरी गुड, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, राइट। अगर मैंने cos 7 थीटा में ये मांग लिया होता फिर कितना आएगा आगमजीत? अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 7 थीटा बाई 2। एंगल को हाफ करना है, राइट। ओके सर। चलिए अगर tan में बात करूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो मुझे बताइए हाँ इस जी फॉर्मेट के हिसाब से cos थीटा का आंसर क्या बनेगा नैना जी? so 1 minus tan square theta by 2 हाँ जी, और फिर अपॉन 1 plus tan square theta by 2. हाँ बस ये समझना है
एंगल यहाँ कुछ भी आए, आपको एंगल हाफ करना है, चाहे 2 थीटा हो चाहे 3 थीटा हो। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो सकता है, वो कहता है cos 3 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है, फिर ये क्यों लगाया। अरे भाई क्वेश्चन में देखो, टू प्रूव में कुछ ऐसा सा ही हिंट होगा, 3 थीटा बाई 2 होगा वहाँ पे, राइट। सो ये क्वेश्चन को देखकर डिसाइड होगा। सिमिलरली tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एंगल हाफ हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे tan थीटा पूछता हूँ तो आंसर कितना होगा आगमजीत? सर एक बारी फिर बोलना, फिर से बताना। हाँ देखिए फॉर्मेट यही है, आंसर को एंगल को हाफ करना है आपने। तो tan थीटा पूछा तो 5 थीटा लग जाएगा। अगर मैंने आपसे यस सर। 4 थीटा पूछा होता तो फिर क्या आंसर होता सर 2 आ जाता। हाँ 2 tan 2 थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा, राइट। अगर मैंने आपसे सिर्फ tan थीटा ही पूछ लिया होता फिर क्या आंसर आता? सर सेम नहीं आता बेटा, एंगल को हाफ करना है ना, अभी हाफ। थीटा है। सर वो हाँ थीटा बाई 2 हो जाता। हाँ ऐसे बोलो थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि सेम तो एंगल रह ही नहीं सकता, हाफ होगा ही होगा। तो बेटा थीटा tan 2 थीटा में एंगल हाफ होता है, sin 3 थीटा cos 3 थीटा और tan 3 थीटा में एंगल कितना होता है 1/3। tan 3 थीटा में एंगल कितना होता है 1/3। तो आपको देखिए sin 3 थीटा क्या दिखाई दे रहा है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा दिखाई दे रहा है ना। तो मुझे बताइए 3 थीटा से वो कितना ट्रैवल किया, थीटा की तरफ ट्रैवल किया है ना। तो एंगल क्या हो रहा है 1/3 हो रहा है, 1/3 का मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, पहले 2 से डिवाइड हो रहा था। तो मुझे बताओ sin 6 थीटा कितना आएगा नैना जी? Sir, 3 sin 2 theta. हाँ 2 थीटा, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए कि भाई ये तो 3 से डिवाइड होता है 3 थीटा वाले फॉर्मूलों में। 4 sin क्यूब 2 थीटा बेटा, राइट। चलिए आगमजीत बेटा बताओगे sin 9 थीटा का आंसर क्या बनेगा? सर इसका बनेगा 50 साइन हाँ 9। सर 9 का हाफ हो जाएगा 9/2। अरे चचा हाफ नहीं 1/3 करना है, 1/3। अच्छा ओके सर। हाँ यही तो ध्यान रखना है हमने कि कौन सा फॉर्मेट लगा रहे हैं। तो ये 1/3 वाला फॉर्मेट है बेटा। सर पता कैसे चलेगा? मैंने बार बार आपको एक ही चीज़ बताई है, पता चलेगा क्वेश्चन को देखकर। अभी सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कोई भी किसी में भी लगा सकते हो। मान लो आपको sin 2 थीटा में यही फॉर्मेट चाहिए तो क्या आंसर आएगा नैना जी बताइए? अगर इसी फॉर्मेट का आंसर चाहिए तो फिर आंसर बनेगा 3 sin 3 sin हाँ जी theta by 2. हाँ 2 थीटा बाई 3, सिंपल सी बात है। हमको तो 3 से डिवाइड करना है ना सर, -4 sin ओके क्यूब। सर। हाँ बस ये इतनी सी बात समझ ली किसी बच्चे ने तो ये सबसे टफ टॉपिक होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लास्ट स्टेज है ये।
एक्चुअली इसके बाद भी एक स्टेज होती है, पर वो आपके सिलेबस से काट दी गई है। ठीक है, सो वी हैव, अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा का आंसर क्या बनेगा इस फॉर्मेट में, तो बता सकते हो? सर थीटा बाई 3 हो जाएगा। हाँ बस थीटा बाई 3 हो जाएगा सर, और क्या है, कोई मुश्किल थोड़ी है। मुश्किल तो सर क्लास कभी नहीं हुई, सिर्फ मुश्किल होता है होमवर्क।